हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 22, विच इज कैलकुलेशन ऑफ YTM, yield to maturity, which is all about your debt market, right? So अगर हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट का, बॉन्ड से रिलेटेड आपके एरियाज जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपको बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सो दीज आर लाइक जैसे आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जहाँ से आप यू कैन एक्सपेक्ट हाफ मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका करंट यील्ड, जो हर बार आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। सो अगेन कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड and theorems of bonds. So these are few areas which are very very important one. And क्या क्या कोर्स कंटेंट है, फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक अबाउट दिस पर्टिकुलर वन, देन विल कम टू द पॉइंट्स, ठीक है। So debt, meaning of debt, then we have introduction of bonds, term associated with bonds, types of bonds, optionality in bonds. Again, this is a very important one. Callable and putable bonds. Valuation of bond, again important one. Bond with semi-annual interest, current yield on bonds, the most important. Yield to maturity, again very important. Theorems of bonds, again very very important. Okay. So these are the areas which are you'll if you'll go through the previous year question papers, you'll see number of time examiner they generally ask question based on these particular areas, right? So now I hope everybody is aware about bonds. What is bonds? So bonds are financial instruments through which issuing a company or issuer, they generally raise funds for long term duration. Long term means here we have like 10 years, 15 years, even sometime it is for 30 years also, which is known as a deep discounted bond, right? So अगर हम लोग bonds की बात करते हैं, so like it's a let's say it is a kind of it's a debt instrument which is issued by the issuer at a fixed rate of interest for a fixed time duration. Okay, so rate of interest that is generally known as coupon rate, and time duration which is generally known as maturity period, right? So let's say government of India, जैसे अभी recently आपका budget आया, so we always come up with the deficit budget. So to finance that deficit, government will definitely come up with some kind of bonds जो कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं, ठीक है। सो लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे कम अप विद सम बॉन्ड्स, ठीक है। सो आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉमिस टू पे एंड फेस वैल्यू इज सपोज दैट 1000 रुपीज एंड कूपन रेट इट कैन बी बेस्ड ऑन कूपन रेट, लेट्स से 7% पर एनम विच इज पेबल हाफ ईयरली, ठीक है। इस तरीके से फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। लेट्स से इट इज फॉर 15 ईयर्स, राइट? So it can be this, or like mostly in case of government bonds, you will see they are deep discounted bond, or they generally known as zero coupon bond. But in case of other companies like corporate bonds and others, so these are generally get issued on a fixed rate of interest, and that interest is usually paid within 6 months, like in every 6 month or half annually basis, right? So before coming to this, आप देखो हमने बात किया बॉन्ड्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू जो इश्यूअर है वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज करें। दिस इज वेरी सिंपल, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉर अ फिक्स टाइम ड्यूरेशन। देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद बॉन्ड्स, ठीक है। तो कुछ टर्म्स आपका जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, डे काउंट कन्वेंशन, या इसके अलावा आपका मेच्योरिटी, इसके अलावा मार्केट वैल्यू और पार वैल्यू, ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज। सो फर्स्ट लेट्स हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वन। फर्स्ट वन इज फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू जनरली क्या होता है आपका, लेट्स से देयर इज XYZ, ओके सॉरी, लेट्स से देयर इज XYZ कंपनी, दे कम अप विद अ बॉन्ड्स, ठीक है। इन्होंने आपका एक बॉन्ड इशू किया, ठीक है। XYZ कंपनी दे कम अप विद अ बॉन्ड्स with a face value which is stated on the face of bond, ठीक है। तो face value is like this is the amount which borrower is raising from the market, ठीक है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पर यूनिट कॉस्ट आपका, ठीक है। तो जैसे 1000 रुपए का आपका उसने फेस वैल्यू के साथ स्टार्ट किया एंड योर प्लेस वैल्यू इज 100, सपोज दैट। सो 1000 into 100 that will be the amount invested by the investor, ठीक है। एंड दिस इज द अमाउंट आपका विच इन्वेस्टर विल गेट एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो अब इसी से सारा खेल आपका शुरू होगा। और लाइक जैसे 1000 रुपीज, कई बार क्या होता है ना, लाइक नाउ डेज बॉन्ड्स आर ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो उनकी वैल्यू कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा
लेट्स से इसका मार्केट वैल्यू इज 1100, सो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, जब भी इसका मेच्योरिटी पूरा होगा, इट विल कम डाउन फ्रॉम 1100 टू 1000। अगर ये 900 है तो 900 से आपका 1000, ठीक है। तो इस तरीके से आपके प्रीमियम और डिस्काउंट भी आपका रहते हैं, ठीक है। So first one is face value. Second one is coupon rate. Next one we have coupon rate. Sorry. So next one we have coupon rate. ठीक है. So coupon rate is a fixed rate of interest. ठीक है. So fixed rate of interest आपका. Let's say there is a company जैसे XYZ ने आपका issue किया, ठीक है, at the rate of 7% per annum, ठीक है, which is payable on annually or half yearly or quarterly basis, ठीक है। So this is the rate, like this is your आपका कूपन रेट, ठीक है। सो कूपन रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, ठीक है, विच लाइक अगर मतलब इसका सिंपल सा मतलब अगर वो आपसे 1000 रुपये बोरो करा तो उस पर 7% का आपका इंटरेस्ट पे करने के लिए रेडी है। दैट मीन्स अगर हम इसका एनुअल कूपन निकालें तो 7% ऑफ 1000 इज 70 रुपीज, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा जब आप इसका करंट यील्ड आपका कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज करंट यील्ड इज एनुअल कूपन डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, इनटू 100। सो दैट इज अ बेसिक फॉर्मूला फॉर द करंट यील्ड, राइट। सो नेक्स्ट वन आपका मैच्योरिटी इज वेरी बेसिक, ठीक है। सो लेट्स से दिस बॉन्ड इज फॉर 15 ईयर्स, 15 साल के लिए बॉन्ड आपका इशू किया गया। सो दिस इज द मैच्योरिटी, ठीक है। सो दिस इज द मैच्योरिटी। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी एंड ड्यूरेशन, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैच्योरिटी इज लाइक जितने समय के लिए वो आपका रेज करें, ठीक है। ड्यूरेशन, बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल इन सेकेंडरी मार्केट, देयर इज अ इन्वेस्टर हु बाय एंड सेल द बॉन्ड, उसने खरीदा आज, 100 दिन के बाद उसने बेचा, तो दिस 100 डेज इज जनरली नोन एज ड्यूरेशन। सो ड्यूरेशन कैन बी लेस देन इक्वल टू योर मैच्योरिटी, राइट। अगला आपका रिडम्पशन वैल्यू। नेक्स्ट वन वी हैव रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है। सो रिडम्पशन वैल्यू इज दिस इज द अमाउंट विच बॉन्ड होल्डर्स विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब वो उसको सेल करेगा तो जो वैल्यू उसको मिलेगी, ठीक है, विच इंक्लूड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट आपका, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। सो देन वी हैव मार्केट वैल्यू। सो बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल इन मार्केट, सो मार्केट वैल्यू कैन बी डिफर फ्रॉम फेस वैल्यू, ठीक है, वो दैट टोटली डिपेंड ऑन मार्केट फैक्टर्स, डिमांड इन सप्लाई, ठीक है। तो अगर डिमांड ज्यादा होगा सो आपका उसका फेस वैल्यू से प्राइस ज्यादा हो सकता है, अगर कम होगा तो कम होगा, ठीक है। जितना आपका एक चीज ध्यान रखना है, थ्योरम में आपको ये चीज मिलेगी वैसे, ठीक है। जैसे सपोज दैट इसका जो करंट फेस वैल्यू इज आपका 1000, मार्केट वैल्यू कैन बी लेट्स से 1200 है, दैट मींस इट इज इन प्रीमियम। क्यों? अभी ये प्रीमियम में है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स, इट विल कम डाउन टू दिस, ठीक है। दूसरा, इट कैन बी, इसका मार्केट वैल्यू कैन बी आपका जैसे 900 है, ठीक है, सो इट इज इन डिस्काउंट बिकॉज at the end of the maturity it will become this, ठीक है, eventually it will become 1000, ठीक है, at the end of the bond period और maturity आपका, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, थ्योरम कैसे काम करेगी, सिंपल सा एक लॉजिक आप देखिए कि जितना अगर मैच्योरिटी पीरियड में गैप जितना ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे अभी आपका है 1 साल, अभी 10 साल बचे, जितना ज्यादा टाइम बचा होगा उतना वो प्रीमियम साइड में होगा, या 10 इस फेस वैल्यू से उतना दूर हो सकता है। जैसे जैसे मैच्योरिटी आपका क्लोज आएगी तो इट विल कम डाउन, ठीक है, वो आपका इसके क्लोज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मार्केट वैल्यू इसके फेस वैल्यू के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डे काउंट कन्वेंशन, नाउ द नेक्स्ट वन इज डे काउंट कन्वेंशन। ये जो इंटरेस्ट रेट आपका, इट इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट पे, इंटरेस्ट पे आउट, ठीक है। तो जैसे जनरली बहुत सारे डे काउंट कन्वेंशन आपको होते हैं 30, आपका 360, मतलब ये जनरली क्या है आपका कि जैसे कोई अगर बॉन्ड को होल्ड कर रहा है तो उसमें हम लोग जैसे लेट्स से एक हमने केस समझा कि उसने ड्यूरेशन वाज 100 डेज, तो वहां पे इंटरेस्ट कैसे काउंट होगा, हम साल में कितने दिन काउंट समझेंगे, 365, या फिर आपका महीने में कितना डेज समझें, ठीक है, एक्चुअल एक्चुअल समझें, या फिर आपका 30, 365, 30 आपका और एक्चुअल 360, ऐसा जो टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होता है, ठीक है, बहुतों के लिए नया होता है। तो जैसे हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट्स आर मेड बेस्ड, सॉरी, इंटरेस्ट पेमेंट आर मेड बेस्ड ऑन डे काउंट कन्वेंशन, जैसे एक्चुअल एक्चुअल जितने साल में दिन है और जितने दिन के लिए उसने उसको होल्ड किया हुआ, ठीक है। तो एक्चुअल 365, मंथ में आपका जितने डेज हैं एक्चुअल, और आपका साल में वी आर कंसिडरिंग 365 डेज, एक्चुअल 360। यहाँ पे आपका हम लोग एक साल में कितने डेज काउंट करें, 360, 30, 360। अब यहाँ पे हम लोग मंथ में डे काउंट करें 30 आपका, साल में 360, अगर वो 28 है आपका 31 है वो हम नहीं करें, इस तरीके से साल में हम लोग कंसिडर करेंगे आपका
कितना 360 डेज। तो दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, और बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट आपका रखा था, ठीक है। सो कूपन रेट हमने समझा, मैच्योरिटी हमने समझी, ठीक है, रिडम्पशन वैल्यू हमने समझ लिया, फेस वैल्यू हमने समझा, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, फेस वैल्यू वाज 1000 एंड प्लेस वैल्यू वाज सपोज दैट 100, सो दिस इज योर प्लेस वैल्यू, ठीक है। 1000 वाज द फेस वैल्यू एंड आपका 100 यूनिट्स लिए हैं, सो दैट इज योर प्लेस वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू, इट कैन बी डिफर फ्रॉम द योर फेस वैल्यू, इट कैन बी इन प्रीमियम एज वेल एज इन डिस्काउंट, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी इट विल बिकम फेस वैल्यू ओनली, ठीक है। सो डे काउंट कन्वेंशन ये हमने आपका लास्ट में डिस्कस किया। नाउ करंट यील्ड ऑन बॉन्ड, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो इसको करंट यील्ड, हाउ वी कैलकुलेट करंट यील्ड, इट इज एनुअल कूपन डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस इनटू 100, ठीक है। हर एग्जामिनेशन के अंदर रिकॉर्ड है इस क्वेश्चन का, अगर आप पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन उठाते हैं तो हर साल वो आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है, ठीक है। सो हाउ वी कैलकुलेट करंट यील्ड, तो वी हैव बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, let's say there is a bond whose face value is 1000, ठीक है, 1000 and coupon rate is suppose that 7% per annum, right? So 7% per annum and current market price is suppose that आपका 900, इट इज इन डिस्काउंट, ठीक है। तो आपको अगर करंट यील्ड निकालना है तो निकल जाएगा, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। सो एनुअल कूपन आपका, सो इट इज करंट यील्ड इक्वल टू एनुअल कूपन, 7% ऑफ 1000 इज हाउ मच, 70, सो 70 डिवाइड बाय 900 इनटू 100, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर आंसर फॉर दिस वन, कितना होता है, सो 70 डिवाइड बाय 900, so it is into 100, so it is how much, 7.77%, ठीक है। so 7.78% अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो दिस इज योर करंट यील्ड। अब यहीं पे इफ वी चेंज द सिनेरियो, अगर हम लोग कर देते हैं करंट मार्केट प्राइस, अभी ये डिस्काउंट पे था, अगर हम इसको प्रीमियम में लेके आए, ठीक है, सपोज दैट करंट मार्केट प्राइस इज 1200 रुपीज, ठीक है। सो नाउ इट इज इन प्रीमियम, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर करंट दिस, सो 70 डिवाइड बाय आपका 1200 इंटू 100, तो क्या होता है इसका आउटकम, व्हाट इज द आउटकम, यहां से आपको थ्योरम समझना आसान हो जाएगा। 70 डिवाइड बाय 1200, सो इट इज इनटू 100, सो इट इज 5.83%, ठीक है। सो करंट यील्ड इन दिस पर्टिकुलर वन इज 5.83%, ठीक है। सो दिस इज द केस। तो देखो अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, देखो क्या हो रहा है कि अगर ये डिस्काउंट पे, दिस इज इन डिस्काउंट, डिस्काउंट पे क्यों है, क्योंकि एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी इट विल बिकम हाउ मच, 1000, ठीक है। दिस इज द फेस वैल्यू विच इन्वेस्टर गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो अभी 900 है, तो आपका एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी इट विल बिकम 1000, ठीक है। अगर ये 1200 है तो एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी इट विल बिकम 100, ठीक है। सो यहां से कम होकर यहां जाएगा, यहां से बढ़ के यहां जाएगा। तो अगर करंट यील्ड क्या होता है आपका, कि अगर मैं आज इस बॉन्ड को परचेज करता हूं एंड इफ आई होल्ड दैट बॉन्ड टिल मैच्योरिटी, so how much return I'll get from that particular investment. So now you can see here, ठीक है, if it is in discount, so I'll return, मेरा जो रिटर्न होगा that will be more than the coupon rate, जो कूपन रेट है आपका उससे ज्यादा होगा, क्योंकि अभी ये डिस्काउंट में, ठीक है। और अगर करंट मार्केट प्राइस इज दिस and if I buy this bond today and I hold till the maturity, I'll get 5.83%. तो यही आपका थ्योरम, जो थ्योरम का आधार होता है कि वो डिस्काउंट मैच्योरिटी, आपका डिस्काउंट अगर मतलब इफ मार्केट वैल्यू इज हायर तो योर करंट यील्ड विल बी लोअर, ठीक है, और इफ मार्केट वैल्यू इज लोअर करंट यील्ड विल बी हायर, तो इनवर्सली रिलेटेड जिसको हम लोग बोलते हैं, सो दैट इज द वन, अंडरस्टूड। तो दिस इज योर करंट यील्ड, अंडरस्टूड। चलो अब इसमें जैसे बुकिश लैंग्वेज को भी अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें, ठीक है, सेम चीजें आपको मिलेंगी। इट मेजर द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन अ बॉन्ड if it purchased at its current market price and if it coupon interest is received, तो current yield equal to coupon interest divided by करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड्स के अंदर आपका ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। सो इफ अ बॉन्ड फेस वैल्यू इज 1000 कैरिंग अ कूपन रेट ऑफ 8%, so and
इट्स मार्केट प्राइस इज हाउ मच 800, डिस्काउंट पे है, ठीक है. सो इट विल गेट, देखो अब इसका मार्केट रेट है 800 और फेस वैल्यू इज 1000, तो और कूपन रेट कितना है 8% है, तो इसका जो करंट यील्ड है दैट इज हायर देन द कूपन रेट. रीजन क्योंकि इवेंचुअली इट विल बिकम 1000, तो 8% ऑफ 1000 डिवाइड बाई 800 इज 10%. जैसे आप इन दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हैं. बिलीव मी गाइस, एवरी टाइम सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आपका है, वन इज करंट यील्ड, अनदर वन इज योर थ्योरम्स, बॉन्ड्स थ्योरम्स, ठीक है. सो आपका 10%, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, यूजुअली मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर, दे नेवर आस्क द वैल्यूएशन पार्ट, ठीक है. वो थ्योरम दे देगा आपको, बट आपको इतना बड़ा वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए देगा नहीं, बट स्टिल वी हैव दिस फॉर्मूला, ठीक है. सो कंप्लीटली फॉर्मूला ड्रिवन, ठीक है. सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, देन एनुअल इंटरेस्ट, रिडीमेबल वैल्यू, मैच्योरिटी पीरियड एंड आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है. सो थ्योरम्स, हाँ इस पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है. सो व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न market interest rate is equal to coupon rate, the value of bond is equal to its par value. मतलब like market rate is 1000, face value is 1000, simple सा, ठीक है. When the required rate of return is greater than coupon rate, ठीक है. So required rate of return is greater than coupon rate, the value of bond is less than its par value, ठीक है. तो जिसको हम लोग डिस्काउंट वाला कहते हैं, इसका अपोजिट, when required rate of return is less than the coupon rate, the value of bond is greater than its par value. जैसे 1200 वाला केस हमने लिया था. When the required rate of return is greater than coupon rate, it is in discount, ठीक है. So required rate of return is greater than this, कि आपका जैसे annual coupon was 7% and required rate of return is 10%, so that is it is in discount, ठीक है. दूसरा आपका अपोजिट, required rate of return is less than coupon rate, ठीक है. तो जैसे 7% आपका कूपन रेट है और वो आपका आ रहा था 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, दैट इज इट इज इन प्रीमियम, ठीक है. सो इस तरीके से, और बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स यील्ड टू मैच्योरिटी, दैट सो ये जो हमने आउटकम्स आपका समझे, दिस पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बहुत बार आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे विथ सेम स्टेटमेंट्स, यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट और द राइट स्टेटमेंट, ठीक है. So a bond price is inversely related to its yield to maturity. आगे, so for given different between YTM, yield to maturity, and coupon rate of bonds, the longer the maturity, the greater will be changes in price with the change in YTM, ठीक है. जितना मैंने आपको बताया था ना, अगर 1 साल होगा, 15 साल का बॉन्ड है, तो उसमें चेंजेस और उसका जो कहीं ना कहीं जो वेरिएशन वो ज्यादा होंगे, बट जैसे जैसे वो आपका मेच्योरिटी के क्लोज आएगा, so there will be like, because eventually it will become face value, जो face value का amount है वही बन जाएगा आपका, ठीक है. So given the maturity, change in bond price will greater when a decrease in bond YTM, then the change in bond price with an equal increase in the bond YTM. So for equal size increase and decrease in YTM, price movements are not systematical, ठीक है. For any given change in YTM, the percentage price change in case of bond of a high coupon rate will be smaller in case of bond of a low coupon rate, other things remaining constant. Or change in YTM affect the bond with a higher YTM more than it does bond with the lower YTM, ठीक है. तो ये जो 10 statements हैं, these are the most important, बहुत important. एंड जब भी उसने YTMs, सॉरी, जब भी उसने थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं ना, इट इज इन मैक्सिमम टाइम इट इज फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, ठीक है. तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. सो प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूरेशन क्या क्या है. ड्यूरेशन इज लेस देन, अब ड्यूरेशन मैंने आपको समझाया था, व्हाट इज ड्यूरेशन, कि लेट्स से आपका एक बॉन्ड इश्यू किया गया, ठीक है. सो देयर इज अ बॉन्ड आपका, जो कि किसने इश्यू किया, XYZ लिमिटेड के द्वारा फॉर 15 ईयर्स, ठीक है. So अब this bond is tradable in secondary market. अब there is a person called Mr. A जिसने इसको buy किया and उसने इसको sell किया within a time frame of suppose that 330 days, ठीक है. So this 330 days is generally known as duration and this is called maturity. ये आपके है 15 year के लिए debt raise करा, that is 15 years maturity and this is duration. अब now it can be लेस देन इक्वल टू योर मेच्योरिटी. ऐसा भी हो सकता है ना कि मिस्टर ए
जिसने इसको बाय किया ड्यूरिंग द एनएफओ प्रोसेस एंड ही होल्ड दैट बॉन्ड टिल मैच्योरिटी. सो इट कैन बी आपका इट कैन बी लाइक इट इज दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी कि ड्यूरेशन कैन बी लेस देन इक्वल टू योर मैच्योरिटी. ठीक है, तो ये आपका जैसे यहाँ पे ड्यूरेशन इज लेस देन इक्वल टू मैच्योरिटी. ठीक है, बॉन्ड ड्यूरेशन विल बी इक्वल to its term of maturity if it is only a zero coupon bond. अब zero coupon bonds क्या होते हैं? Which are generally issued by government of India. Zero coupon bonds में आपका जीरो कूपन बॉन्ड्स के अंदर आपका जो मैच्योरिटी और ड्यूरेशन है वो हमेशा इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर नॉन ट्रेडेबल. वो जनरली कैसे होते हैं? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉन्ड इश्यू किया, ठीक है, भारत सरकार ने आपका एक बॉन्ड इश्यू किया विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000. ठीक है, अब ये जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है? जीरो, देयर इज नो कूपन, देयर इज नो इंटरेस्ट. ठीक है, अब इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब कि इसमें रिटर्न नहीं है. तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है, दे गेट इशूड ऑन डिस्काउंट बेसिस. गवर्नमेंट ने जब इसको इशू किया उसने डिस्काउंट पे इशू किया. सपोज दैट 500 रुपीज का, ठीक है, तो और इट वाज सपोज दैट फॉर 10 इयर्स. तो सरकार क्या बोल रही है कि आप अभी 500 रुपए हमें दो. दिस इज द इनिशियल मनी विच इज पेड बाय द इन्वेस्टर एंड एट द एंड ऑफ 15 ईयर वी विल गिव यू 1000 रुपीज. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जनरली कैसा ट्रेडेबल नहीं है वो नहीं है. तो यहाँ पे सिंपली क्या लॉजिक चलता है आपका? दिस थ्योरम आपका, ठीक है, काम करेगा. सो द ड्यूरेशन ऑफ परपेचुअल बॉन्ड्स. परपेचुअल बॉन्ड्स क्या होते हैं आपके जनरली? अगर हम लोग परपेचुअल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सो इट इज लाइक बॉन्ड्स विद नो मैच्योरिटी डेट. इस तरीके से हम लोग इनको लेके चलते हैं. ठीक है, सो ऐसे बॉन्ड्स आपका विच इज नोन एज प्रेप काइंड ऑफ इक्विटी विच बेयर अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इक्विटी से जो इनको अलग करती है बट इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है. ठीक है, so bond is equal to 1 plus r divided by r, where r is current yield of the bond. The longer the coupon rate, the longer the coupon paying bonds term to maturity, the greater difference between its maturity and duration. सिंपल सा लॉजिक है ना, आप एक साल में है या फिर आपका 5 साल में. जैसे अभी ये बॉन्ड लॉन्च हुआ, ठीक है, तो अगर किसी ने डे वन उसको खरीदा तो 15 साल है. इट कैन बी ड्यूरेशन कैन बी 15 ईयर्स. 2 साल बाद खरीदा तो नाउ ड्यूरेशन विल बी मैक्सिमम 13 ईयर्स. अगर 5 साल बाद एंटर किया ड्यूरेशन विल बी मैक्सिमम 10 ईयर्स. ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं. और इट कैन बी ऐसा कोई भी नंबर भी हो सकता है. ड्यूरेशन एंड वाईटीएम आर इनवर्सली रिलेटेड. ठीक है, तो ड्यूरेशन जितना ज्यादा होगा वाईटीएम उतना कम होगा और वाइस वर्सा. Larger the coupon rate, smaller the duration. An increase in the frequency of coupon payments decrease the duration, while a decrease in frequency of coupons increase it. So duration of bond decline as the bond approach to the maturity. ठीक है, so this is again very important one. ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं जो बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. आई होप यहाँ तक का स्टोरी सबको क्लियर है. ठीक है, अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है, कोई भी ऐसा पॉइंट है तो आप लिख सकते हैं. अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर. टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के अंदर आपका दो बॉन्ड्स, एक तो आपको याद रखना है कौन सा, जिसपे मतलब स्पेशल फोकस रहता है IIBF का, दैट इज ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड्स, कॉलेबल बॉन्ड्स एंड पुटेबल बॉन्ड्स. ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा है. दूसरा इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स आपका. ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा. अगर हम लोग ओवरऑल टाइप्स की बात करते हैं, वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, सो जैसे फिक्स रेट बॉन्ड, जहां पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा थ्रू आउट द पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड्स और थ्रू आउट द डेट पीरियड. ठीक है, तो 15 साल के लिए तो 7% पर एनम विच इज पेबल हाफ ईयरली, वो सेम रहेगा. फ्लोटिंग रेट में क्या होता है? यहाँ पे दीज टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर लिंक्ड विद सम इंडाइसेस. ठीक है, तो इंडाइसेस में जो चेंजेस होगा या फिर आपका उन इंडाइसेस का जो चेंज है वो इन बॉन्ड्स में आपका हाफ ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे इनके प्राइसेस चेंज रहेंगे. ठीक है, कूपन रेट जो रहेगा. जीरो कूपन अभी हमने बात किया जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में दे गेट इशूड ऑन डिस्काउंट बेसिस. ठीक है, इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड, दिस आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, परपेचुअल बॉन्ड्स आपका बॉन्ड्स विद नो मैच्योरिटी डेट. ठीक है, प्रेप आपका काइंड ऑफ इक्विटी, बट इक्विटी और बॉन्ड्स में डिफरेंस क्या है? इक्विटी यहाँ पे कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है, इट इज टोटली डिसाइडेड बाय बैंक. यहाँ पे आपका एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है बट इनकी भी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है. सबऑर्डिनेटेड डेट, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स. सो सबऑर्डिनेटेड डेट क्या होता है? विच गेट सेकेंडरी प्रायोरिटी. ठीक है, सबऑर्डिनेट होता है ना, एक प्राइमरी एक सबऑर्डिनेट. ठीक है, तो अगर कंपनी कल के डेट में लिक्विडेशन फेस करते हैं तो इनको दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी. दैट मींस दे आर रिस्कियर इन नेचर, रिस्की होंगे तो रिटर्न भी ज्यादा होगा. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय द कॉर्पोरेट हाउसेस. ठीक है, टैक्स फ्री बॉन्ड्स आते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफर करते हैं ना, आप इसमें इतना इन्वेस्ट करो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा. उसमें भी अलग अलग क्लॉजेस होते हैं, जैसे एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, मतलब प्रिंसिपल भी एग्जेम्प्ट रहेगा,
जो इंटरेस्ट आपकी अर्निंग होगी वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा, जब आप उस अर्निंग को दोबारा से इन्वेस्ट करोगे तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। बहुत लेस केसेस आपका कई जगह पे आपका टैक्सेबल एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, मतलब जो प्रिंसिपल आपका है वो टैक्सेबल है, जो इनकम आपकी हो रही है, इंटरेस्ट अर्निंग हो रही है, दैट इज एग्जाम्प्टेड, उस अर्निंग को अगर आप इन्वेस्ट करो दैट इज अगेन एग्जाम्प्टेड। ऐसे अलग अलग क्लॉसेस, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स bonds which are issued by the public sector enterprises, municipal और local authority bonds, state governments, central governments, जिनको sovereign bonds भी हम लोग बोलते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। दो बॉन्ड्स जिसके बारे में मैंने आपसे बात की, पहला इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड आपका, ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड्स। वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर वन इन डिटेल बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला हमारे पास है आपका, और बाकी के लिए मैं आपको डेफिनेशन दे दूंगा, कोई डाउट होगा तो आप लिखिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड। नाउ हाउ दिस इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड वर्क, ठीक है। सो इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड 2011-12 जब इनका पहला सीरीज आपका लॉन्च किया गया, ठीक है। आई होप एवरीबडी नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? सो इन्फ्लेशन आपका क्या होता है? इन्फ्लेशन इज जनरली इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो सामान्यतः प्रयोग में आने वाले वस्तु और सेवाओं की मूल्यों में वृद्धि होती है उसको इन्फ्लेशन या महंगाई बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स से इस मार्कर का प्राइस पहले 10 रुपए था, नाउ इट इज लाइक सपोज दैट 15 रुपीज। सो दिस कोर्स ऑफ एक्शन इन इकोनॉमिक्स इज जनरली नोन एज इन्फ्लेशन। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। सो एज इन्फ्लेशन इंक्रीज every rupee we own by a smaller percentage of goods and services, ठीक है। अगर महंगाई की दरें बढ़ेंगी तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी? कम होगी। लेट्स से सपोज दैट आपका फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, सपोज दैट एवरेज इन्फ्लेशन वाज 5%, ठीक है। ये कितना था आपका? 5% था, ठीक है। सो दैट मीन्स अब 5% से महंगाई बढ़ी है तो 5% से आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर कम होगी। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल पहले के जो 100 रुपए थे, नाउ दे आर इक्वल टू 105 रुपीज। तो दिस इज द इम्पैक्ट, ठीक है। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा ना, 1 रुपए में 8 टॉफी मिलती थी, फिर ठीक है कम होते होते आज 1 रुपए में 8 टॉफी मिल रहा है। रीजन, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता गया तो 1 रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो आपका कम होता गया। दैट इज वेरी बेसिक, टीम। अब देखो यहाँ पे हम ये कहानी की बात क्यों कर रहे हैं, अब आपको यहाँ से ये समझ में आएगा, ठीक है। सो लेट्स से आपका देयर इज अ इन्वेस्टर कॉल मिस्टर एक्स, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लंबा लगेगा बट ये परमानेंट आपके साथ रहने वाला है। मिस्टर एक्स हु इन्वेस्टेड 100 रुपीज एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, ठीक है, 7% का। सो एट द एंड ऑफ द ईयर ही विल रिसीव 107 रुपीज। तो ये जो 107 रुपए है या इसकी जो अर्निंग है 7 रुपीज, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नॉमिनल इनकम, ठीक है। ये इसकी क्या है? आपका नॉमिनल इनकम है, ठीक है। सो नॉमिनल इनकम, सो नॉमिनल इनकम विदाउट द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसकी नॉमिनल इनकम कितनी है? आपका 7 रुपए। मतलब अब देखो हमने क्या किया, 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 7 रुपए के ब्याज के साथ 107 रुपए हो गया, तो हमारा पैसा 100 रुपए से ग्रो करके 7 रुपए। अब इस दौरान इन्फ्लेशन भी तो बड़ा है ना, इस दौरान आपका इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुआ है। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। सपोज दैट एवरेज इन्फ्लेशन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड वाज 5%, तो हमें निकालना होगा रियल इनकम। हमारे लिए नॉमिनल इनकम उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती जितनी हमारे लिए करती है रियल इनकम, वास्तविक आय। एक्चुअल में हमने कितना अर्न किया, एक्चुअल कैसे निकालेंगे कि इन्फ्लेशन कितना खा गया इसमें। तो हाउ वी कैलकुलेट रियल इनकम? इट इज आपका इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। सो इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू योर रियल इनकम। सो अब इस केस में अगर आप देखते हैं, सपोज दैट एवरेज इन्फ्लेशन वाज 5%, ठीक है। एवरेज इन्फ्लेशन 5% ही था, ये सेम केस आपका। सो नाउ योर इंटरेस्ट वाज 7%, दिस इज 5%, सो योर रियल इनकम इन दिस केस इज हाउ मच? ओनली ₹2, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है कि आपने 7 रुपए कमाया है, बट रियलिटी में आपने सिर्फ आपका 2 रुपए अर्न किया है इस पर्टिकुलर उससे। समझ में आया? ठीक है। तो ये आपका, अब ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे, ठीक है। सो यहां तक तो अभी तक हमारा, अब डायरेक्ट लिंक होगा किसके साथ? इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब देखो सपोज दैट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉन्ड इश्यू किया या किसी भी XYZ ने एक बॉन्ड इश्यू किया, ठीक है। फेस वैल्यू वाज 1000, ठीक है, एंड कूपन रेट वाज 7% per annum
एंड मेच्योरिटी वाज सपोज दैट 15 ईयर्स, 10 ईयर्स ले लेते हैं, चलो ठीक है 10 ईयर्स, ठीक है। तो एक XYZ कंपनी जिसने बॉन्ड इश्यू किया आपका, ठीक है। अब इसमें दिस मिस्टर एक्स हु इन्वेस्टेड, अब इस बॉन्ड्स में सपोज दैट देयर इज अ कॉल पर्सन कॉल्ड मिस्टर ए हु इन्वेस्टेड 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। 1 करोड़ रुपए का इसने इन्वेस्टमेंट किया इस बॉन्ड के अंदर आपका, ठीक है। सो अब यहाँ पे इसको इनिशियली तो ठीक लग रहा था कि यार जब इन्फ्लेशन 3-4% था इकोनॉमी में, तो उसको लगा यार 3-4% ही रहेगा तो 3-4% का मेरा अर्निंग होगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ड्यूरिंग दिस 10 ईयर्स, इस जो 10 साल का एवरेज इन्फ्लेशन था, सो एवरेज इन्फ्लेशन फॉर 10 ईयर्स वाज सपोज दैट 10%। अब उस क्या हुआ, इस 10 साल के दौरान जो महंगाई की दरें थी वो काफी तेजी से बढ़ी और एवरेज इन्फ्लेशन वाज 10 ईयर्स। नाउ यू कैन सी द कैलकुलेशन, क्योंकि अब क्या हुआ, ऐसा हुआ है मतलब 2010-11 वाज अ टाइम जब इंडिया में इन्फ्लेशन 10.70 या 10.40% के रेंज में हुआ करता था। अब क्या हुआ, इसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद उसने जितना इन्वेस्ट किया था उससे कम उसको मिल रहा है, ठीक है। कम मिल रहा है ना, क्यों, इसकी इन्वेस्टमेंट निगेटिव में चली जाएंगी। क्यों है आपका यहाँ पे हमारे वाले केस में रिटर्न वाज 7% एंड इन्फ्लेशन वाज 10%, तो -3 आपका इसका, इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपका नेगेटिव में चलेगी, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब 10 साल का टाइम, लॉन्ग टर्म पीरियड, 10 साल 15 साल, इतना बड़ा टाइम रहेगा तो इन्फ्लेशन के साथ कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमी के साथ कुछ भी हो सकता है उस टाइम ड्यूरेशन में। तो ऐसे सिचुएशन से आपका इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लेके आए, आपका हम लोग मतलब गवर्नमेंट लेके आए इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड, जो कि लिंक है एक इंडाइसिस के साथ, यूजुअली इट इज CPI, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, मैक्स फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे आपका मैक्स और जीरो, ठीक है। सो जैसे उन्होंने बोला CPI प्लस 2%। अब इसके बाद इन्फ्लेशन कितना भी बढ़े कितना भी घटे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा ये जो रिटर्न 2% है, मतलब इन एवरी सिचुएशन विल गेट दिस रिटर्न ऑफ 2%। जैसे इन्फ्लेशन आपका था सपोज दैट 10%, सो 10 प्लस 2, इन्फ्लेशन था आपका 2%, तो 2 प्लस 2, इन्फ्लेशन वॉज निगेटिव, डिफ्लेशन में था, तो हमने फॉर्मूला यूज करेंगे मैक्स और जीरो, तो इसको हम लोग जीरो कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 2%। So in every situation, we will protect our investor and they'll get this much of return. I hope this is clear. तो इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड आपका, ठीक है, अंडरस्टूड। कोई डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर, ठीक है। और आई होप समझ में आया होगा। तो अब आप डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन इज inflation linked bonds are to help to protect investors from inflation. Inflation linked bond are indexed to inflation so that the principal and interest payments rise and fall with the rate of inflation. जैसे मैंने आपको अलग अलग सिनेरियोज आपका बता करके दिए। क्लियर गाइस? सो ये आपका इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। परपेचुअल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स विद नो मैच्योरिटी हमने समझा था, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड्स आपका जनरली गवर्नमेंट जब भी बॉन्ड इशू करते हैं, नॉट ओनली बॉन्ड इवन ट्रेजरी बिल्स आल्सो, तो दे जनरली इशू दोज पर्टिकुलर सिक्योरिटीज एंड डिस्काउंट, ठीक है। फेस वैल्यू पे डिस्काउंट आपको देगी और मेच्योरिटी पे आपको फेस वैल्यू मिल जाएगा। सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स दे गेट सेकेंडरी ऑप्शन, ठीक है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So next thing we are going to understand that is optionality in bonds, बहुत ही important है again, ठीक है। So now what is optionality in bonds, ठीक है। आपने options के बारे में सुना होगा ना, ठीक है। So we have two type of option, ठीक है। कौन कौन से, one is call option, ठीक है, and another one is put option, ठीक है। ऐसा आपका वहां पे भी रहता है, same here also, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका दो ऑप्शन है, one is callable bonds, another one is portable bonds. So suppose that there is a company who issued bonds, ठीक है। एक कंपनी आपका जिसने बॉन्ड इशू किए, ठीक है, XYZ के द्वारा बॉन्ड इशू किया गया, the face value of 1000, coupon rate was 9% and maturity was 15 years, ठीक है, 15 years। अब देखो क्या है ऑप्शनलिटी, ऑप्शन मींस यहाँ पे जो इशूअर है बॉन्ड का, इशूअर मींस बोरोवर्स, और जो इन्वेस्टर्स हैं आपके, जो लैंडर्स आपके हैं, ठीक है। तो उनके पास ये ऑप्शन, इन केस ऑफ अगर जैसे ये बॉन्ड आपका जब इशू किया गया XYZ के द्वारा, ठीक है, इन केस ऑफ इफ इट इज कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड से, सो XYZ और इशूअर, ठीक है, XYZ और इशूअर, ठीक है, इशूअर के पास आपका एक राइट है, ठीक है, सो दे हैव अ राइट। सो राइट क्या है इनका, आपका राइट टू बाय बैक दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, ठीक है। सो ये क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को आपका बाय बैक कर सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन व्हिच इज मेंशन अंडर दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे ये राइट आपके इनके पास 5 साल के बाद था,
कि they can return the investors money and they can buy back those particular bonds unit from the market. So that is, तो in case of callable bonds, right reserve to issuer. ये आपको यहां से ध्यान रखना और यहीं से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, इन केस ऑफ पुटेबल बॉन्ड्स, पुटेबल बॉन्ड्स में आपका क्या होगा, राइट रिजर्व टू किसके पास, आपका राइट टू इन्वेस्टर, जो उस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टर्स आपके हैं, ठीक है, लैंडर्स आपके हैं। राइट क्या होगा इनके पास, टू सेल बैक, इनका राइट क्या है आपका, टू सेल बैक दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, ठीक है। मतलब बेसिकली दे कैन फोर्स टू द इशूअर, they can ask for their money after this particular time duration. This means not maturity, ठीक है। आपका जैसे this right is after 5 years, callable right और putable right is after 5 years, तो 5 साल के बाद जिन भी इन्वेस्टर ने उसमें पैसा लगा रखा है, अगर उनको कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है या अगर उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो दे कैन फोर्स टू दिस इशूअर मींस XYZ कंपनी कि हमारा पैसा आप वापस दीजिए। सो दैट इज द ऑप्शनैलिटी इन बॉन्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। डू रिमेंबर इन केस ऑफ कॉलेबल बॉन्ड्स, राइट रिजर्व टू इशूअर ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। सो अ कॉलेबल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट अलाउ द इशूअर of the bond to retain the privilege of redeem. Redeem का मतलब होता है buyback. Redeeming the bonds at some point before the maturity. जैसे हमने 5 साल का केस लिया था. In case of putable bonds, आपका that provide the holder of the bond means investor the right but not an obligation to force the issuer redeem the bonds. ठीक है. So it is a right but not an obligation. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ऑप्शंस में हमेशा ये चीज होती है, इट इज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, कि आप बायबैक करो, मतलब उसको कोई फोर्स नहीं करेगा, ये कंपनी का अधिकार है या ये इन्वेस्टर का अधिकार है, ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू फोर्स हिम कि बायबैक करना है या सेल बैक करना है, वो उसका चॉइस आपका। अंडरस्टूड, ठीक है। सो करंट यील्ड कैसे निकालते हैं ये हमने समझा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सिचुएशन भी आपको दे रखी है, करंट यील्ड इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। और आपका YTM का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया। सो दिस इज इट, क्लियर है सबको। तो आई होप सबको क्लियरिटी मिली होगी क्या होता है बॉन्ड एंड व्हाट इज YTM, ठीक है। यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा डराया गया है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ YTM, इतना बड़ा यूनिट आपका लिख दिया है, ऐसा इतना टफर साइड आपका नहीं है, ठीक है, आपके कोर्स करिकुलम के अंदर एटलीस्ट, ठीक है। सो जो बेसिक बेसिक लाइक इफ यू अंडरस्टूड दिस मच ना, बिलीव मी गाइस, एग्जाम में बॉन्ड्स वैल्यूएशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज माय पर्सनल एश्योरेंस टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो ध्यान रखें, आपका पढ़ें समझें, डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो कैसा लगा सेशन, आप जल्दी से कमेंट्स के थ्रू लिख के बता दीजिए, थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो, आप लोग भी शेयर करो चीज़ों को, ठीक है। और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। रेगुलर आपका मॉड्यूल C तक हम लोग पहुंच गए हैं, आप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि वी डू हैव दैट कंसिस्टेंसी। हम आपसे भी वही उम्मीद रखते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों को पढ़ो, एंड बिलीव मी गाइस, इफ विल फॉलो दिस एंटायर सीरीज, आने वाले एग्जामिनेशन में डाउन साइड 70+ विल बी योर स्कोर, ठीक है। हम एग्जाम के बाद भी आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपका ओपन प्लेटफॉर्म है, लाइक यू स्टडी, आप अच्छे से पढ़ो समझो, डाउट्स आता है डाउट पूछो, एग्जाम में बढ़िया से मचाओ, फिर हम आपस में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड आप लोगों के और सब्जेक्ट के भी आपकी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। जैसे PPB आपका दिशा मैम ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं, इसके अलावा अरविंद सर आपका RVWM, एंड वेरी सून विल स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो, राइट। इसके अलावा और भी आपके कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, सो यू कैन फील फ्री टू अप्रोच अस, राइट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे गाइस। सो सी यू टुमारो एट 7 PM, हर दिन आपका 7 बजे हम लोग मिलते हैं विद न्यू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। जो भी हमारा अगला टॉपिक होगा उसको हम लोग वहाँ पे कवर अप करेंगे, राइट। So this is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.